हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कर रहे थे लास्ट क्लास में। हमने उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 7.1 के। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABCD। आपने ये बताना है कि इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो किस टाइप का है। या तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा एंड सो ऑन। तो आपके पास आपने क्या करना है, इसमें आप इनकी साइड्स निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम इसमें सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0. Let A be 1, 0, C -1, 2 and D -3, 0. The distance between 2 points is √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. AB पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर is equals to 1 plus 1 2, 2 square is 4 plus 4 √8 which is equals to 2 √2 units. Now next is BC. हम BC पे अप्लाई करेंगे। ये आपके पास आएगा -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर 4 plus 4 which is equals to √8 2 √2 units. Next one is CD. -3 plus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square 4 plus 4 √8 2 √2 units. AD -3 plus 1 whole square plus 0 plus 2 whole square 4 plus 4 √8 which is equals to 2 √2 units. अब इसकी सारी साइड्स आपके पास इक्वल आ रही है। अब हम इसके चेक करेंगे डायगोनल्स। AC -1 plus 1 whole square 2 plus 2 whole square 0 plus 4 4 square 16 √16 is 4. BD (0 minus 0 whole square) √16 which is equals to 4 units. Now here AC is equals to BD and AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. इसकी सारी साइड्स भी आपके पास इक्वल आ रही हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं। तो ABCD जो है दैट इज अ स्क्वायर।
is a square. Now second part, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4. Let points A -3, 5, B 3, 1, C 0, 3 and D -1, -4. Now AB, x1, y1, x2, y2, 3 plus 3 whole square, 1 minus 5 whole square, 6 square which is equals to 36, 1 minus 5 minus 4 square 16, under root 52 which is equals to 2 under root 13 units. BC, x1, y1, x2, y2, 0 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square, 9 plus 4 which is equals to under root 13 units. CD, x1, y1, x2, y2, -1 minus 0 whole square plus -4 minus 3 whole square, 1 plus 49 which is equals to under root 50 or 5 under root 2 units. Now AD. AD is x1, y1, x2, y2. So -3 plus 1 whole square plus 5 plus 4 whole square, 4 plus 81 under root 85 units. Now AB is not equals to BC, is not equals to CD, is not equals to AD. So the given points do not form any quadrilateral. Any quadrilateral. Now the next part, third part, 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2. x1, y1, A point, B point, C point and D point. Let points be A 4, 5, B 7, 6, C 4, 3 and D 1, 2. Now AB is under root of 7 minus 4 whole square plus 6 minus 5 whole square. 7 minus 4 is 3, 3 square is 9 plus 1 under root 10 units. BC, x1, y1, x2, y2. So 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square. 3 square 9 plus 9 which is equals to under root 18, or you can say 3 under root 2 units.
CD 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square. Minus 3 square 9, 2 minus 3 is minus 1 square plus 1 under root 10 units. Now AD 1 minus 4 whole square plus 2 minus 5 whole square. 9 plus 9 under root 18, which is equals to 3 under root 2 units. Now AC under root of 4 minus 4 whole square, AC 4 5 and C is 4 3. So 4 minus 4 whole square plus 3 minus 5 whole square. 4 minus 4 is 0. 3 minus 5 is minus 2 square 4, which is equals to 2 units. And BD 1 minus 7 whole square plus 2 minus 6 whole square. 1 minus 7 is minus 6 square 36 plus 2 minus 6 is minus 4 square 16, which is equals to under root 52. 2 under root 13 units. Now here AB is equals to CD and BC is equals to AD and AC is not equals to BD. So therefore the quadrilateral ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. Now the next question is question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from the point 2 minus 5 and minus 2 9. A point on the x-axis. कोई भी पॉइंट अगर हम एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा 0. Let points be A 2 minus 5 and B minus 2 9. Let P x 0 be the point on x-axis. So PA is equals to PB. आपको कह रहे हैं कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. हम एज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x and 0. ये पॉइंट आपके पास A है 2 and minus 5 और ये पॉइंट आपके पास B है विच इज इक्वल्स टू minus 2 and 9. आपने ये डिस्टेंस जो है AP और PB ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि P पॉइंट जो है दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स A and B. सो PA इज इक्वल्स टू PB. अब आप इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PA पे. ये आपके पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर. और p b पे आप निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर. x माइनस 2 होल स्क्वायर इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
81, ये रूट और ये रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। Now x square minus 4x plus 29 minus x square minus 4x minus 81 is equals to 0. x square और x square cancel out हो गया। minus 4x will become minus 8x plus 29 minus 81 is (56). Minus 56 is equals to 0. Minus 8x is equals to 56. Minus x is equals to 56 by 8. Now x is equals to minus 7. Therefore, the required point is minus 7, 0. Now the next question is question number 8. Find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है और आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8। points P 2 minus 3, Q 10, y एंड PQ जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स लिख देंगे। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ। नाउ x2 आपके पास क्या है, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब ये स्क्वायरिंग आप रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 100, क्योंकि जब आप इसकी स्क्वायरिंग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। ये बन गया आपके पास 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। नाउ y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 इज 73, 73 माइनस 100 इज माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, y कॉमन आ गया, y प्लस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन आ गया, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ जाती है माइनस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। So y is equals to 3 or minus 9. Now the next question is question number 9. If Q01 is equidistant from the point P and R, find the value of x. Also find the distances QR and PR. Now Q is equidistant from the point P and R, so QP is equals to QR. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, ये भी वैसे ही होगा, QP is equals to QR.
point Q01 is equidistant from points P and R. So QP is equals to QR. 5 minus 0 होल स्क्वायर. अब आप QP पे पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. -3 minus 1 is 4. 4 square is 16. यहाँ पर आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 25. रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25. 25 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया. आपके पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. नाउ इफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 देन x इज इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस 4. अब इसमें हमने QR और PR भी निकालने हैं. तो QR इज इक्वल्स टू x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25. x की वैल्यू 4 पुट करिए या माइनस 4 पुट करिए, इट्स अप टू यू. यहाँ पर आप -4 या 4 पुट करेंगे, स्क्वायर करके आपके पास 16 आ जाएगा. 25 अंडर रूट 41. QR में आपके पास इसका रिजल्ट आ गया अंडर रूट 41 यूनिट्स, क्योंकि जब आप इसमें x की वैल्यू अगर माइनस पुट कर रहे हैं तब भी यही रिजल्ट आएगा, प्लस पुट कर रहे हैं तब भी यही रिजल्ट आएगा. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, अगर हम PR में पुट करते हैं, PR x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 81. 4 माइनस 5 इज माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 81 इज 82. ये आ जाएगा आपके पास 82 यूनिट्स. और जब हम इसमें x की वैल्यू -4 पुट करेंगे PR में, तो -4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 81. यहां पर देखिए ये -4 और -5 -9 बनाएगा और 9 का स्क्वायर आपके पास अगेन 81 होता है. So 81 plus 81 which is equals to 81 under root 2 units. तो ये है आपके पास रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 9 का. Now the last question of this exercise, find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point this and this. 3, 6, -3 and 4. अब एक पॉइंट अगेन इक्वल डिस्टेंस पे है, सेम दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे. अब AP पे सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। दोनों के आप रूट कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 प्लस 9 इज प्लस 45। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 इज प्लस 25। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप देखिए माइनस का साइन आप कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, आपके पास रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y।